हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से। चैप्टर नंबर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ओके, द पॉइंट मास 0.3 kg, 0.2 kg and 0.1 kg are placed at the corner of right angle triangle ABC as shown. ओके, ये डायग्राम है स्टूडेंट्स। आप वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, अबाउट एन एक्सिस थ्रू A and perpendicular to the plane of diagram. It means here, like this one, students. Suppose this one is a rod which is going to weld, which is going to soldering with this point. Soldering means इसको connect कर दिया गया students. अब अगर मैं इसको rotate करता हूँ, यहाँ से इसको rotate करता हूँ, तो कितना moment of inertia produce होगा students? Okay, start finding out student fast. You can take 1 minute of time student, find out. Go for the second question students also. Okay, about an axis along BC. It means if the rod is going to weld, okay, from this point, अगर रॉड को इस तरफ से वेल्डिंग कर दिया जाए इस BC से और इस टाइप से रोटेट किया जाए, ऐसे रोटेट किया जाए, ओके, सो व्हाट विल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ओके स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग अहेड। अगर आपका आंसर नहीं आया स्टूडेंट तो आप वीडियो को ओके स्टॉप करके आप बनाएंगे स्टूडेंट्स को। ओके, वी आर मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, सी द सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन, suppose this point you need to find out moment of inertia. Okay, so this point the mass is 0.3 kg but the distance was 0. Okay, this is the rod, this one is a rod, so this mass and this mass will okay active. That will be what formula is what I is equal to mr square. So m is 0.2 into this distance AB 0.3 का square. Second one is what 0.1 kg into r का square means this AC का square. AC is what, this is 0.3, this is 0.4. So by the Pythagorean substance this will be a 0.5 meter. So students यहाँ पर हो गया mass into radius square. If you get the answer, this will be the final answer. Check it. Okay, check this one. And for the BC students, for the BC second solution, this one is solution A point. Solution 1B. B will be what students, यहाँ से आपको रोटेट करना है. So only this mass will be active because ये मास का डिस्टेंस जीरो हो गया स्टूडेंट्स और ये मास का भी डिस्टेंस जीरो हो गया. So solution 1B point will be I is equal to mr square only. That will be what 0.3 into this distance will be 0.3 meter. The mass is also 0.3 kg and the distance is also 0.3. So 0.3 का square. So the answer will be what 0.3 into 0.3 will be 0.09. So I will be 9 is 27, 123. This is kg meter square. This will the answer students. Now go for the second question. A body of mass 50 gram is revolving upon an axis in a circular path. The distance of center of mass from the axis of rotation is 50 centimeter. Find the moment of inertia of the body. Start finding out students. Mass is given 50 gram and radius is given from the axis of rotation. Radius is given 50 centimeter. You need to find out moment of inertia. Find out students. जिसका आंसर नहीं आया वो वीडियो को स्टॉप कर लेंगे स्टूडेंट, पॉज कर लेंगे. ठीक है, यू कैन सी द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. गिवन मास इज इक्वल टू 50 ग्राम, radius is equal to 50 centimeter, that is 0.5 meter. So I is equal to what, this may be a diagram. Okay, this is the mass and this is the axis of rotation and here the body is going to rotate. This body is going to rotate this side. So I is equal to mr square. Mass will be
50/1000 converted into SI. Very simple question is students this one. R is equal to 0.5 का square. So the answer will be 0.0125 kg meter square. Okay, next topic. Next topic is radius of gyration. What is radius of gyration? First we are going to see the definition, then we are going to derive it. See, the radius of gyration of a body about its axis of rotation is defined as the distance from the axis of rotation at which, if the whole mass of the body were concentrated, its moment of inertia about the given axis would be same as with the actual distribution of the mass. इसको डेफिनेशन से पहले इसको स्टूडेंट्स एग्जांपल समझते, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन को एक बार और समझा दूंगा. ठीक है, इधर देखेंगे. मान लो ये डिस्क है स्टूडेंट्स, ये डिस्क है जिसको आपको यहाँ से रोटेट करना है, मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन. ये प्लेन है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आपको यहाँ से रोटेट करना है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है स्टूडेंट mr²/2. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट लास्ट ईयर तक हम फाइंड आउट करते थे, डिराइव करते थे, बट इस ईयर ड्यू टू कोविड 30% सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस. तो उसमें स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए, डिस्क के लिए, रॉड के लिए, स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, ये सब रिमूव हो चुका है स्टूडेंट्स. इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो बस. तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन का तो mr²/2 होता है. तो मान लो स्टूडेंट्स, ये इसको देखेंगे, ये पूरी डिस्क है स्टूडेंट्स, ये मान लो एक बॉडी है जो रोटेट हो रही है. इसका मास, जो डिस्क का मास है वो m है. तो यहाँ जो एक बॉडी है, पॉइंट बॉडी है, ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है. इसका मास क्या है, m है, जिसका भी रेडियस क्या है, r है मान लो. सो अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्रोड्यूस करता है तो ये बॉडी भी कितना प्रोड्यूस करेगा, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, क्योंकि मास तो वही है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में डिपेंड करता है, मास और डिस्टेंस स्क्वायर में. तो देखो इसका मास m है, ये पूरी बॉडी का मास m है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसका मास m है और डिस्टेंस कितना r है. तो ये भी अगर उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करता है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्टूडेंट्स, सी हियर, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr². सो दिस रेडियल डिस्टेंस, इस रेडियल डिस्टेंस को we are call this radial distance is called radius of gyration. Radius of gyration. This radial distance is called radius of gyration denoted by k. अब इसको k से रिप्रेजेंट कर देंगे स्टूडेंट. यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर ये सेम वही बॉडी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है, और ये रेडियल डिस्टेंस को अपन k अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट, मास इंटू k का स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर. इसको किससे इक्वेट कर देना है स्टूडेंट्स, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम. हियर इट इज रिटन, यू कैन सी द डेफिनेशन अगेन स्टूडेंट. नाउ द रेडियस ऑफ gyration about a body about its axis of rotation is defined as distance from the axis of rotation at which, वो डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ द होल मास ऑफ द बॉडी वेर कंसंट्रेटेड, मतलब वो डिस्टेंस जहां पर पूरा मास कंसंट्रेटेड है. ओके, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन पॉइंट विल बी सेम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम है इज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास. ओके स्टूडेंट, यहां देखते हैं इसको. सो mk², इसको किससे इक्वेट कर दिया अपन ने, mr²/2 से. तो यहाँ k² क्या आ गया स्टूडेंट्स, m से m कैंसिल हो गया, k² क्या हो गया, r²/2. तो k की वैल्यू होगी r². इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेक्शन. ये रेडियस ऑफ गायरेक्शन, रेडियस ऑफ गायरेक्शन क्या हो गया, √r²/2. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे एवरेज डिस्टेंस. ये क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस होता है एक्चुअल मास जहां पर कॉन्सेंट्रेट होता है. अगर ये पूरी डेफिनेशन आपको याद नहीं होती है स्टूडेंट, तो यू कैन राइट इन अ सिंपल वे, इट्स एवरेज डिस्टेंस वेयर द होल मास इज कंसंट्रेटेड. इट्स एवरेज डिस्टेंस वेयर द होल मास इज कंसंट्रेटेड. ओके, सिंपल डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स. दिस वन इज आयरन रॉड. आयरन रॉड, यू आर गोइंग टू रोटेट दिस आयरन रॉड फ्रॉम द एक्सिस, दिस एक्सिस. ओके, द मास ऑफ द आयरन रॉड इज m सपोज. सो हियर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/2. ये भी स्टूडेंट्स अपन डिराइव करते थे, बट जो 30% रिड्यूस हुआ है सिलेबस में, ये भी टॉपिक हट गया. सो ओनली रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट इज ml²/12.
ओके, नाउ कंसंट्रेट हियर। सपोज कर लो ये पूरी बॉडी का जो मास m है वो a है, और जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट बॉडी ऑब्जेक्ट है, इसको भी सेम ओके एक्सिस से रोटेट कर रहे हैं, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना है इसका भी उतना ही है, तो इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ डायरेक्शन बोला जाएगा, जिसको k से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जिसका कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk²। तो इसका जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्टूडेंट्स और इसका जितना है, इस दोनों को इक्वेट कर दो और k की वैल्यू निकाल दो। सो यू गेटिंग द k की वैल्यू इज व्हाट, k इक्वल टू √L²/12। दिस इज रेडियस ऑफ डायरेक्शन, दिस वन इज रेडियस ऑफ डायरेक्शन, is radius of gyration। gyration होता क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय gyration? gyration इज अ रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, ये रेडियल डिस्टेंस। अगर पूरी बॉडी, फिर से समझेंगे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को, अगर पूरी बॉडी, जैसे ये पूरी बॉडी है, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से मैं कन्वर्ट कर दूं, ये पूरी बॉडी को मास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट कर दूं, तो उसका रेडियल डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, रेडियस ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल यू कैन सी, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, a body of mass 2 kg is revolving in a horizontal circle of radius 2 meter at the rate of 2 revolution per second। Determine moment of inertia and second the rotational kinetic energy of the body। Start finding out students, start finding out numerical। What is given student? Mass is given, radius is given, and frequency 2 revolution per second, 2 rps is given, that is frequency is given student, frequency f 2 rps। you need to find out omega, and the omega formula is what, 2 pi f। put the value of f and get the value of omega। okay, the solution will be in next video students, thank you।